Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in our today's video, we are going to discuss about section 60 of Indian Evidence Act. हम section 59 और 60 को डिस्कस करेंगे, जिसमें 59 हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. So these two sections together talk about oral evidence, which are dealt in the chapter 4. तो section 60 ये बताता है कि oral evidence must be direct evidence. मतलब कि क्या कि it must not be a indirect evidence, it must not be a hearsay evidence, and oral evidence must be a direct evidence. ये बोलता है, ये सेक्शन की हेडिंग बताती है. Now the ingredients of this section are as follows. कि suppose in this section the section says that oral evidence must be direct. That is, it refers to, suppose if the evidence, if any oral evidence refers to any fact which could be seen, then in that case जिसने उसको देखा था उस fact को वही उसको दे, वही oral evidence दे, then only it would be considered as relevant. फिर if the fact which could have been heard, तो उस केस में the person who has heard should give the statement. ठीक है, should give the oral evidence. If the fact was of such nature that it could be perceived by any senses, then in that case the person who have perceived such fact through his senses should give the oral evidence. If it refers to any opinion or ground of opinion, then the person who has given such opinion or the person who has used particular grounds to give this opinion, that person should give the oral evidence. तो यहाँ पर the person who has actually heard, seen or perceived through senses or has given the opinion should give the oral evidence and not any other person, because अगर कोई और person देता है तो that would be considered as indirect evidence and that would be considered as a hearsay evidence, and that hearsay evidence is not relevant. What is relevant is that the oral evidence must be direct evidence as per section 60 of Indian Evidence Act. तो यहाँ पर जिसने उस फैक्ट को उस घटना को घटित होते हुए देखा, सुना या सेंसेस के थ्रू परसीव किया या फिर उसने अपनी कोई राय दी, तो जिस पर्सन ने उसको ये एक्सपीरियंस किया, दैट पर्सन हिमसेल्फ शुड गिव द एविडेंस, देन ओनली दैट पर्सन हिमसेल्फ शुड गिव द ओरल एविडेंस. In that case, it would be considered as direct oral evidence. But अगर कोई उसके अलावा और कोई पर्सन देता है, सपोज देखा था सी ने ए ने बी को चाकू से मार रहा था और ये फैक्ट सी ने देखा, लेकिन सी यहाँ पर एविडेंस नहीं दे रहा है, सी ओरल एविडेंस नहीं दे रहा कोर्ट में, डी दे रहा है. सी ने डी को बता दिया था सेम चीज और डी दे रहा है, तो दैट इज अ हियरसे एविडेंस एंड दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड. एज पर दिस सेक्शन ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट एविडेंस. मतलब यहाँ पर सी का एविडेंस, ओरल एविडेंस रेलेवेंट होगा, डी का नहीं, क्योंकि सी ने यहाँ पर डायरेक्टली देखा और फिर सेम चीज है कि डायरेक्टली सी ने सुना या फिर सी ने परसीव किया थ्रू सेंसेस या फिर सी ने अपनी ओपिनियन दी, तो सी का रेलेवेंट है, डी का नहीं. तो अगर सी डी को सब चीजें बता देता है तो डी का हियर से माना जाएगा, बट सी का डायरेक्ट माना जाएगा. तो डायरेक्ट एविडेंस इज रेलेवेंट, ओरल एविडेंस मस्ट बी अ डायरेक्ट एविडेंस एंड नॉट अ हियर से एविडेंस. उसके बाद आते हैं हम इस सेक्शन के प्रोवाइजो क्लॉजेस पे. तो सबसे पहला प्रोवाइजो है कि अब सपोज इसका पहला प्रोवाइजो रिलेटेड है ओपिनियन से. जो पर्सन ओपिनियन देता है on with regards to any fact by way of oral evidence, तो अगर वो पर्सन अपनी ओपिनियन सपोज किसी ट्रीटी में दे देता है, अपनी किसी मतलब वो कहीं किसी बुक में या डॉक्यूमेंट में या ट्रीटी में लिख देता है which is commonly offered for sale now, then in that case that book treaty would be relevant if for the purpose of oral evidence given by the person, if that person is now either dead or is or cannot be found, means either dead or lost, or he is incapable of giving the statement, he is incapable of giving the oral evidence, or it is unreasonable for the court to bring him to court for the purpose of making the statement, either by way of either it is causing either it is too expensive or it would cause a huge wastage of time. तो टाइम या फिर मनी दोनों के वेस्ट होने से अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये अनरीजनेबल है इस पर्सन को बुलाना और उसके स्टेटमेंट को लेना, तो इस केस में उसकी ओपिनियन, अगर उसने किसी ट्रीटी बुक या डॉक्यूमेंट में अपनी ओपिनियन लिखी थी और वो आज कॉमनली अवेलेबल है बिफोर द पब्लिक, विच इज ऑफर्ड फॉर सेल इन टुडे इन पब्लिक, देन इन दैट केस दैट मे बी प्रूव्ड by production of such, in that case the evidence, oral evidence can be that fact can be proved by way of the production of such book, treaties or documents. ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात यह है कि अब सपोज आज मेरी राय में, अगर मैं सी हूं, यहाँ पर ए और बी का एग्जांपल था, ए ने बी का मर्डर किया, मैं सी मैंने देखा, अब मैंने देखा और मेरी ये ओपिनियन है कि मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन है कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि ए ने ही चाकू से ही बी को मारा क्योंकि बी का घाव बहुत गहरा था.
और ये मैंने अपनी किसी ट्रीटीज में या किसी बुक्स में डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया और वो आज पब्लिकली बिक रही है बाजार में, ठीक है। तो उस केस में, और अब सपोज मैं कल के दिन मर जाता हूँ, तो अब क्योंकि आई एम नॉट अवेलेबल बिफोर द कोर्ट, तो इस केस में मेरा जो ओरल एविडेंस था, वो जो फैक्ट था, जो मेरी राय में क्या था कि ए ने चाकू से बी को मारा है, दैट फैक्ट इफ इट इज मेंशन्ड इन दैट बुक, देन दैट बुक कैन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट एंड दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ रेलेवेंट ओरल एविडेंस, रेलेवेंट डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है। क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूं, अब या तो मैं खो गया हूं या मर गया हूं या फिर मैं बहुत दूर चला गया हूं इंडिया से, मतलब सपोज अब्रॉड गया हूं, और कोर्ट seems it unreasonable to call me and give the statement, then in those cases अगर मैंने कोई ओपिनियन वो ट्रीटीज विच मैं दिया है उनमें लिखा हुआ है और एंड दोज आर ऑफर्ड फॉर सेल इन पब्लिक, then those can be produced before the court and would be considered as a direct oral evidence. So this was about proviso 1. अब हम बात करेंगे proviso 2 की। वो बताता है कि if the oral evidence is with respect to any existence of condition or if it's with respect to any existence or condition of any material thing, then in that case court may require to produce such material thing for the purpose of inspection. Suppose कि मतलब ओरल मैं बोल रहा हूं, अगर मैं ओरल एविडेंस दे रहा हूं कि ए ने चाकू से ही बी को मारा था, ठीक है। यहाँ पर दैट मतलब ए ने जब बी को मारा था, तब वहां पर मैं ये भी बोल रहा हूं कि जब ए ने बी को मारा था तब उसके आसपास बहुत सारे हथियार थे, ठीक है, उसके पास और भी बहुत सारे वेपन्स थे। तो यहाँ पर there is the evidence is with respect to existence of weapons or the condition that there were several weapons. तो यहाँ पर ये existence of जो weapons हैं, ये अगर confiscate हुई है बाद में, पुलिस को अगर ये weapons मिली हैं, तो those weapons have to be produced before the court for the purpose of inspection, because my oral evidence is based on that existence of those weapons, is based on the existence of those material things. तो यहाँ पर अगर मेरा oral evidence अगर किसी मटेरियल थिंग के ऊपर बेस्ड है, तो कोर्ट में रिक्वायर टू प्रोड्यूस दोज मटेरियल थिंग्स फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन एंड देन वो ओरल एविडेंस को कंसीडर कर सकता है। सो दिस वाज अबाउट प्रोवाइजो 2 ऑफ दिस सेक्शन। इसी के साथ हम ये सेक्शन खत्म करते हैं। अब एंड में बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस सेक्शन के अंदर बेसिकली उन्होंने इतनी सी बात बोली जनरली कि ये सेक्शन ये बताता है कि ओरल एविडेंस जब आप दे रहे हो एज पर सेक्शन 59 और 60, तो वो डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, दैट मस्ट नॉट बी हियरसे एविडेंस। क्योंकि जब हियरसे हो जाता है ना, तो मैं सी हूं, सपोज वो ए और बी, सी के एग्जांपल में मैं सी, मैंने डी को कुछ बात बताई, डी ने ई को कुछ बात बताई, तो वहां पर क्या होता है ना कि जो ओरिजिनलिटी है कंटेंट की, वो खत्म होती चली जाती है, बिकॉज हर पर्सन का अपना पर्सपेक्टिव उसमें ऐड होता चला जाता है। तो उस रीजन से when an evidence become a hearsay evidence, it loses its credentials, and because of that it loses its effectiveness, and that's why the court states that whenever there is a oral evidence, it must be a direct evidence and not a hearsay evidence. So this was all about this section. Now we will talk about chapter 5 in our coming videos, जहां पर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, जो डील करता है सेक्शन 61 से सेक्शन 90 तक। अब ये बहुत लंबा गैप है, मतलब इतने सेक्शन 61 से 90 तक सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 61 से फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।